People, good evening. So today we are going to study life processes in living organisms, part one. It is chapter number 2 in science 2. It's a very important chapter because if you don't understand part one, you cannot understand part two, and it will help you understand basics of how all life processes work. And on the basis of these basics, you would be able to understand human organism, human behavior, human systems, as well as life systems of other mammals, also of life systems of other organisms. We will start from as basics um, as a single celled organism to a multi-celled organism. We'll understand how are they classified. We will also come to know about the total development of various life processes in all organisms. Okay, so without further ado, let's start very quickly. Living organisms and life processes. Various organ systems are continuously performing their functions in human body, along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory, and control systems. Different external and internal organs are performing their functions independently, but through a complete coordination. This overall system is in action in more or less same way in all the organisms. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कई सारे organ systems जो हैं वो अपने human body में functions कर रहे हैं. बहुत सारे system जैसे digestive खाना पचाना, respiratory सांस लेना, circulatory हमारे शरीर में खून घूमता है, excretory हम खाना पचाने के बाद उसको मल को निकाल देते हैं, और कंट्रोल सिस्टम हम हाथ पैर हिला पाते हैं, आंखें हिला पाते हैं, मुंडी हिला पाते हैं, ये सब कंट्रोल होता है. और कई सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल जैसे कि हाथ पैर आंख नाक, ये एक्सटर्नल है. इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारे के सारे फंक्शंस इंडिपेंडेंटली करते हैं, इनके अपने अपने काम होते हैं, बट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. अगर एक भी फंक्शन कुछ भी जरा सही नहीं हुआ तो हमारा और पूरा ह्यूमन बॉडी बराबर काम नहीं करेगा. ये ओवरऑल सिस्टम है, ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम है, बस इसके लिए ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. Those are in need of continuous source of energy for this purpose. Carbohydrates, fats, and lipids are the main source of this energy, and it is harvested by the mitochondria present in each cell. It is not like that only foodstuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है, इनको होने के लिए कंटिन्यूअसली हमें एनर्जी की जरूरत होती है. और ये जो एनर्जी है, ये हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, फैट से मिलता है, और लिपिड से मिलता है. तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स खाते हैं, ये इसके थ्रू जो एनर्जी है वो हार्वेस्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा. माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो हर सेल में, हर एक सेल में मौजूद होता है. खाली फूड स्टफ इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है. बिना ऑक्सीजन के हम फूड स्टफ ब्रेक नहीं कर सकते. तो ये सारी के सारे फूड स्टफ और ऑक्सीजन जो है वो सेल तक कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी all these, that is foodstuffs and oxygen, are transported up to the cell via circulatory system. Besides, it is coordinated by the control system of the body. That is, each life process contributes in its own way in the process of energy production. Functioning of all these life processes also require the energy. तो ये सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेस है, ये कंट्रोल करता है हमारा कोऑर्डिनेशन. हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट करता है, इंश्योर करता है कि ये हर सेल तक पहुंचे, और ये सब के सब चीजों को भी करने के लिए एनर्जी रखता है. यानी कि जैसे अगर हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो जब तक वो सामान नहीं पहुंचेगा दूसरी जगह पे काम नहीं होगा. बट सामान पहुंचाने के लिए भी तो हमें गाड़ी लगेगी, सामान पहुंचाने के लिए भी एनर्जी लगेगा. उसी तरह खाने को पूरे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने के लिए भी एनर्जी लगती है, वो भी हमारे लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है. Human and other animals consume the fruits and vegetables. Plants are autotrophs. They prepare their own food. They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in various parts like fruits, leaves, stem, roots, etc. तो ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं. बट प्लांट्स जो हैं वो किसी को कंज्यूम नहीं करते, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. और ये खाना वो खुद खुद थोड़ा यूटिलाइज करते हैं और थोड़ा सा स्टोर करते हैं. वो कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में. हम ये सारे को प्लांट मटेरियल्स को खा के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. तो ये कौन से फूड मटेरियल तो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं, और इससे आपको समझेगा कि कैसे आप ये सारी चीजें पाते हैं. So we consume all these various plant materials and obtain different nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, etc.
We obtain the carbohydrates from milk, fruits, jaggery, cane, sugar, vegetables, potatoes, sweet meats, and cereals like wheat, maize, ragi, jawar, millet, rice, etc. तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है? हमें दूध से, फ्रूट से, शुगर, गुड़ से, शुगर से, वेजिटेबल से, आलू से, मिठाइयों से, और जो भी हम अनाज खाते हैं उससे मिलता है. We get 4 kcal energy, that is we get energy from per gram of carbohydrate. So हर बार हमें एक 4 kcal energy per gram मिलता है. अब देखते हैं कि एनर्जी कैसे ऑब्टेन होता है. Many players are seen consuming some food stuff during breaks of the game. आप लोगों ने क्रिकेट, फुटबॉल ऐसा कुछ भी देखा होगा, तो जब ब्रेक होता है तो उन लोगों को बनानास या फिर फ्रूट ड्रिंक्स ऐसी सब चीजें दी जाती है ताकि उनको एनर्जी मिल सके. ठीक है. Living organism and energy production. In living organism, respiration occurs at 2 levels, as body and cellular level. Oxygen and carbon dioxide are exchanged between body and surrounding in case of respiration occurring at body level. In case of respiration at cellular level, foodstuffs are oxidized either with or without help of oxygen. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है? वो अकर होता है बॉडी लेवल पे और सेलुलर लेवल पे. तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में घूमता है, जिस वजह से रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे भी होता है. एक तो हमारा लंग्स जो है वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन आता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बट ये जो ऑक्सीजन वो अंदर लेता है वो हमारे सेल्स तक भी पहुंचता है, जिसके वजह से हमारे सेल्स जो है वो एनर्जी ऑब्टेन कर पाते हैं. Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need. This energy is obtained in the form of ATP. For this purpose, glucose, a type of carbohydrates, is oxidized step by step in the cells. This is called as cellular respiration. Cellular respiration occurs among the living organisms by 2 methods. Those 2 methods are aerobic respiration, oxygen is involved, and anaerobic respiration, where oxygen is not involved. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. तो कार्बोहाइड्रेट जो हम हर रोज खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलता है. ये एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में मिलता है. इसके लिए ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, कार्बोहाइड्रेट से लेकर रेस्पिरेशन तक इसको हम मार्क करेंगे. सेलुलर रेस्पिरेशन का ये एक्सप्लेनेशन है. सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 तरीके से होती है. एक है एरोबिक, यानी जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और एक है एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता. अब एरोबिक में कैसे होता है ये आगे देखेंगे. Glycolysis. Process of glycolysis occurs in cytoplasm. A molecule of glucose is oxidized step by step in this process, and 2 molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2, and water are formed. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process. तो ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और 2 पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है. एक है पायरुविक एसिड का, यानी कि ATP, NADH2 का, और वाटर का. तो पायरुविक एसिड जो उस टाइम पे बनता है वो मॉलिक्यूल्स में बनता है एसिटिल कोएंजाइम A के, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH2 के और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं CO2 के. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा. Tricarboxylic acid cycle. Both molecules of acetyl CoA enters the mitochondria. अच्छा, by the way, cytoplasm भी आपके सेल के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके सेल के अंदर होता है. Both molecules of acetyl CoA enter the mitochondria. Cyclic chain of reactions called as tricarboxylic acid cycle is operated on it in the mitochondria. Acetyl part of acetyl CoA is completely oxidized through this cyclical process, and molecules CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है? एसिटिल जो CoA हमारे पास है, यानी एसिटिल कोएंजाइम A जो हमारे पास है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, और इस वजह से हमें एसिटिल पार्ट जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या बचता है हमारे पास? हमारे पास CO2, H2O, NADH2 और FADH2 डिराइव होता है. Now coming to the third process. The third process is electron transfer chain. Molecules of NADH2 and FADH2. तो NADH2 क्या है? नाइकोटेनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 क्या है? फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. इसको याद करने की जरूरत है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स ये सब में आ सकता है. ये एंजाइम्स हैं जो कि सेल्स में बनते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के तौर पे. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 and FADH2 formed during all above processes participate in electron transfer chain reaction. Due to this, 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule, and 2 molecules of ATP are from each FADH2 molecule. Besides ATP,
Water molecules are also formed in this reaction. Electron transfer chain is operated in mitochondria only. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि अब जो भी हमारे पास NADH2 और FeDH2 के हैं, इसके हर एक मॉलिक्यूल से 3 ATP होता है NADH2 के, और हर एक FeDH2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ATP का बनता है. ATP बेसिकली एनर्जी है. ATP ही है सबसे ज्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है हमारा. ओके, तो ये भी कहाँ पे होता है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration, and molecules of CO2 and H2O are produced along with energy. तो ये आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, सेल का एक डायग्राम है. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है. आप लोग माइटोकॉन्ड्रियल मैटर देख रहे हो, आप साइकिल समझ रहे हो. फैटी एसिड से पायरुविक एसिड है, कैसे वो NADH2 और FeDH2 जो है वो घूम के आपको CO2 और ATP रिलीज कर रहा है. सो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है, और CO2 और H2O बाय प्रोडक्ट मिलता है, साथ में हमें मिलती है ATP जो कि है एनर्जी. ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. It's an energy-rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached to each other. तो ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये 3 फॉस्फेट्स का एक मॉलिक्यूल होता है, और इनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड जो है उसमें एनर्जी स्टोर होती है. Chemically, ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose sugar ribose and 3 phosphate groups. तो इसमें क्या क्या होता है? 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है एडेनाइन, और पेंटोस शुगर होता है राइबोस. As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. Hence, ATP is called as energy currency of the cell. तो ATP के बॉन्ड के बीच में जो 3 फॉस्फेट का बॉन्ड है ATP का, उसके बीच में जो एडेनाइन और पेंटोस शुगर होता है, उसके अंदर ही एनर्जी स्टोर्ड है. तो अगर एनर्जी चाहिए तो ATP के बॉन्ड को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी मिलता है. तो ATP एक बेसिकली तुम्हारी एनर्जी का एक तरह का करेंसी है, क्योंकि ATP जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुमको एनर्जी मिलेगा नहीं. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एडेनाइन है, फॉस्फेट बॉन्ड्स है. देखो 3 फॉस्फेट का बॉन्ड है, राइबोस है. तो ये एडेनाइन और राइबोस और फॉस्फेट की जो बॉन्ड्स हैं, वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो आपको एनर्जी रिलीज होती है और ATP खाली हो जाता है. जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो वो एनर्जी आपके सेल में अवेलेबल होती है उसके प्रोसेसेस के लिए. If there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional conditions like fasting and hunger, then lipids and proteins are used for energy production. In case of lipids, they are converted into fatty acids, whereas protein into amino acids. Fatty acids and amino acids are converted into coenzyme, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme by the process of Krebs cycle in mitochondria. तो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट यूज करेगा तुम्हारा बॉडी. इसलिए देखो, जब हमें बहुत भूख लगती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगता है, हमें रोटियां खाने का मन करता है, हमें बनानास या फ्रूट्स खाने का मन करता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्रेविंग है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो ही हमारा बॉडी मेनली यूज करता है. बट अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो फिर वो लिपिड्स, यानी जो भी तुम्हारी बॉडी में फैट्स है वो, या फिर प्रोटीन्स जो भी तुम्हारी बॉडी में मसल्स है वो स्टोर्ड है, वो यूज करेगा, उसको बर्न करेगा ताकि एनर्जी मिल सके. अब देखते हैं कि ये कैसे हमें पता चला. तो ये जो साइंटिस्ट है, इनका फोटो है सर हांस क्रेब. तो इन्होंने क्या किया देखते हैं. Process of glycolysis was discovered by 3 scientists, Gustav Emden, Otto Meyerhoff, and Jacob Parnas, along with their colleagues. For this purpose, they performed experiments on muscles. Hence, glycolysis is also called as Emden-Meyerhoff-Parnas pathway, यानी कि EMP pathway. तो ये जो है 3 मेन साइंटिस्ट थे, गुस्ताव एमडेन, ऑटो मायरहॉफ और जेकब पार्नास. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मसल्स पे, और जिसके वजह से ग्लाइकोलाइसिस इन्हें पता चला. इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहते हैं? EMP पाथवे कहते हैं, उनके तीनों के सरनेम्स के ऊपर. The cyclical reactions of tricarboxylic acid cycle were discovered by Sir Hans Krebs. Hence, the cyclical process is also called as Krebs cycle. He has been awarded the Nobel Prize in 1953 for this discovery. तो जो cyclical reactions है tricarboxylic acid के, इसको किसने find out किया था? इसको Sir Hans Krebs ने find out किया था, और इसीलिए इस साइक्लिकल प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है. इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है 1953 में. आगे देखेंगे, 2 डायग्राम्स हैं यहाँ पर. Process of energy production through aerobic respiration of carbohydrates, proteins and fats. तो एनर्जी कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट से, वो देखते हैं.
कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसकी वजह से पायरुविक एसिड बनता है, जिससे एसिटिल कोएंजाइम बनता है। प्रोटीन्स का एमिनो एसिड से सीधा एसिटिल कोएंजाइम बनता है और लिपिड्स का फैटी एसिड से सीधा एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है। इन सब के बाद क्रेब्स साइकिल यानी कि साइक्लिकल प्रोसेस जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का वो होता है, जिसके वजह से एसिटिल कोएंजाइम से हमें CO2 H2O प्लस एनर्जी यानी CO2 प्लस H2O प्लस ATP फॉर्म होके हमें मिल जाता है थ्रू क्रेब्स साइकिल। बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तीन हमारे पास सोर्सेस है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोलिसिस होता है जिसकी वजह से पायरुविक एसिड बनता है, जहां से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है जो कि क्रेब्स साइकिल के बाद CO2 H2O और एनर्जी देता है। फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड सीधा बर्न होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम देते हैं, इनके कोई एसिड्स नहीं बनते और ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल होने के बाद CO2 H2O प्लस एनर्जी यानी कि CO2 प्लस H2O प्लस ATP फॉर्म करके आपको दे देते हैं। ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ग्लूकोज ही सबसे मेन होता है एनारोबिक में। एनारोबिक में क्या मेन होता है? ग्लूकोज। तो या तो आप ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, उसके बाद आपको पायरुविक एसिड मिलता है। फर्मेंटेशन करने के बाद या तो अल्कोहल और ईस्ट या लैक्टिक एसिड और एरिथ्रोसाइट्स यानी मसल सेल्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि विनेगर, विटामिन और उससे वेरियस माइक्रोब्स। तो ये सब जो है ये एनारोबिक सेल्स में, तीनों के जो एंड हैं, ईस्ट हो गया, माइक्रोब्स हो गया और एरिथ्रोसाइट्स हो गए, ये सब बेसिक सेलुलर फॉर्म्स हैं। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होगा जिनके हायर फंक्शंस नहीं है, यानी मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको दिखेगा। ये दोनों चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ड्रॉ करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एरोबिक तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ तीन ही चीज याद रखना है। एनारोबिक में ये याद रखना है कि फर्मेंटेशन तक सब सेम है, फर्मेंटेशन के बाद ही अलग होगा। एक जगह अल्कोहल बनेगा, एक जगह लैक्टिक एसिड बनेगा। जहां अल्कोहल है वहां ईस्ट है, जहां लैक्टिक एसिड है वहां एरिथ्रोसाइट्स है, और एक जगह पे विनेगर, विटामिन जो भी है वो सारे के सारे माइक्रोब्स के थ्रू हो जाएंगे। ठीक है। Now coming to energy production in microorganisms through anaerobic respiration. Some organisms cannot live in presence of oxygen. Example, many bacteria. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. Glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process. This is called as fermentation. Some higher plants, animals, and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding. तो कई सारे बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से जीते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता और कम एनर्जी मिलता है। पायरुविक एसिड तो इसमें भी मिलता है और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक एसिड से अल्कोहल के साथ वो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऑर्गेनिक एसिड से, लैक्टिक एसिड से, तो फिर वो सीधा मसल सेल में, और अगर अल्कोहल है तो वो ईस्ट में कन्वर्ट होता है। इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। कुछ ऐसे जानवर या कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जबकि वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसा कब करते हैं, जब इनके आसपास की सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन लेवल नहीं रहता। आगे जाके हम देखेंगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired. तो सीड्स जो हैं जब वो पानी के अंदर अगर फंस जाते हैं तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसके थ्रू वो जर्मिनेट कर सके। और हमारे मसल सेल्स भी ऐसा करते हैं जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं। यही वजह है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो कम एनर्जी बनाती है, जिस वजह से हमें थकान महसूस होती है। तो अगर आप अचानक एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे और आपकी बॉडी को आदत नहीं है तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी आपको मना कर रही है इतना एक्सरसाइज करने के लिए और आपको थकान महसूस होगी। ये थकान महसूस होना इसी वजह से होता है क्योंकि बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है। Energy from different food components. Excess of the carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. What is the source of proteins? What are they made up of? तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस होता है वो लिवर और मसल्स में फॉर्म होता है ग्लाइकोजन के तौर पे। इसके लिए देखो, अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपका लिवर जो है वो स्वेल हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। उसको कहते हैं फैटी लिवर डिजीज। वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिवर में स्टोर होता है जिसकी वजह से आपका लिवर रेगुलर फंक्शंस नहीं कर पाता।
Proteins are the macromolecules formed by bonding together many amino acids. Proteins of animal origins are also called as first class proteins. तो प्रोटीन क्या है? ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनता है, जो दूसरे एनिमल्स को खा के प्रोटीन मिलता है, जैसे चिकन हो गया या फिर मीट हो गया, ये जो है इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं. वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन. तो 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाओगे तो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी. इसके लिए जब आप लोग देखिए, अगर आपको बहुत एनर्जी की जरूरत है तो आप लोग प्रिफर करते हैं कि आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, ताकि फिश हो गया, एग हो गया, मीट हो गया या दाल हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, जो प्रोटीन्स में हाई है वो ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा एनर्जी आपको प्रदान करते हैं. Those amino acids are absorbed. Amino acids are obtained after digestion of proteins. Those amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via blood. From these amino acids, organs and cells produce various proteins necessary for themselves and the whole body. Those examples are given in the following diagram. तो जो एमिनो एसिड है वो कैसे मिलता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करके. आपने मीट खाया, एग खाया, दाल खाई, ऐसा कुछ भी प्रोटीन में हाई इंटेक वाला चीज अगर आपने खाया, तो जब वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पे अमीनो एसिड्स देता है. ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपके ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके हर सेल में एब्जॉर्ब होते हैं, और वहां से फिर ऑर्गन और सेल जो है वो जो भी प्रोटीन चाहिए उसको यूज करता है ताकि बॉडी फंक्शन कर सके. तो अमीनो एसिड्स के वजह से क्या क्या होता है? स्किन, मेलेटिन, केराटिन में जाता है, बोन्स में जाता है, कई सेल्स में जाता है, पैंक्रियास में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, मसल्स में और ब्लड में ये जाके ऑब्टेन होता है. Now coming to excess of amino acids obtained from proteins are not stored in the body. They are broken down and the ammonia formed is eliminated out of the body. If necessary, excess of proteins are converted into other useful substance like glucose through the process of gluconeogenesis. तो जब ज्यादा अमीनो एसिड्स अगर बॉडी में है तो वो स्टोर नहीं किया जाता, उसको अमोनिया बना के रिलीज कर दिया जाता है, या फिर उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज के थ्रू स्टोर किया जाता है, जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस. Plants produce the necessary amino acids from minerals de novo and thereby produce different proteins. An enzyme rubisco present in the plant chloroplasts is most abundant protein found in nature. तो रुबिस्को जो एंजाइम है जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में रहता है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है नेचर के अंदर. और प्लांट्स क्या करते हैं? वो नेसेसरी अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिनरल डे नोवो के थ्रू फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब आते हैं लिपिड्स पे. लिपिड्स क्या होता है? एक सेकेंड. हाँ, मैं देख रहा था कितना आज खत्म होगा, क्या मुश्किल लग रहा है. ओके, now we're coming to the point from where do we obtain the lipids. The substances formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohol are called as lipids. Digestion of lipids consumed by us is nothing but their conversion into fatty acids and alcohol. Fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. From those fatty acids, different cells produce various substances necessary to themselves. तो जो केमिकल बॉन्ड होता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल के बीच में, उसको लिपिड कहते हैं. ये जो भी डाइजेशन हम लिपिड का करते हैं वो बेसिकली वही कन्वर्जन है फैटी एसिड्स के अल्कोहल का. तो फैटी एसिड जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इस फैटी एसिड्स के थ्रू जो डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो जो है उनको हम यूज करते हैं अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए. तो फैटी एसिड्स जो आप लोग देख रहे थे फंक्शन में रिलीज होता है, उसके थ्रू ही लिपिड्स मिलता है. आपको चार्ट याद है, हमने देखा था वहां पे. तो वहां पे आपने देखा था कि फैटी एसिड्स रिलीज हो रहे हैं लिपिड्स के थ्रू. ये जो फैटी एसिड्स हैं वहां से आप एसिटाइल कोएंजाइम बना के उसको फिर एब्जॉर्ब कर सकते हो. ठीक है, example, the molecules called phospholipids, which are essential for producing plasma membrane, are formed from fatty acids. Besides, fatty acids are used for producing hormones like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, and the covering around the axons of the nerve cells. We get 9 kilocalorie of energy per gram of lipids. Excess of lipids are stored in adipose connective tissue in the body. तो जो भी लिपिड्स ज्यादा होते हैं आपकी बॉडी में, ये बेसिकली फैटी एसिड्स के थ्रू बनते हैं, और इनसे कई सारे हार्मोन्स भी आपकी बॉडी के बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन जो कि बहुत जरूरी है प्रेग्नेंट औरतों को, एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है जिसके वजह से चाइल्ड फॉर्मेशन होता है, टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन जो कि एक अदर इंपॉर्टेंट हार्मोन है,
और जो आपके नर्व सेल्स के एक्सॉन्स हैं वो भी इससे बनते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है प्रोटीन के मुकाबले में। ये पर ग्राम 9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। और जो भी एडिशनल लिपिड्स है वो आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जमा होते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स जो अपनी बॉडी में है वो एडिपोज से कनेक्टेड है। जैसे आपकी जो एडी है वो आपके पैर से जो कनेक्टेड है, आप अगर आपकी एडी के जस्ट ऊपर हाथ लगाओगे तो एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा नर्व जैसा फील होगा, वो हड्डी के बीच की जो जगह होती है, इसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। वैसे ही आपके बटक्स को जो आपका हिप जोड़ता है वहां पे भी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। आपके कमर के ऊपर वाले हिस्से में भी पाया जाता है। तो कई जगहों पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि आपकी बॉडी में एक्सेस लिपिड्स को स्टोर करते हैं। Vitamins are a group of heterogeneous compounds of which each is essential for proper operation of various processes in the body. तो vitamins जो है वो एक heterogeneous compound है जिसको बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के कई सारे processes के लिए। There are main 6 types of proteins: A, B, C, D, E and K. तो विटामिन जो है वो एक हेट्रोजेनस कंपाउंड। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? जो किसी एक पर्टिकुलर एटम के मॉलिक्यूल से नहीं बनता, जो अलग अलग एटम्स के मॉलिक्यूल से बनता है उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस कंपाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई सारे फंक्शंस के लिए। विटामिन को हमने ए बी सी डी ई और के नाम दिया है। ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। इसमें ए डी ई और के जो है वो फैट सोल्यूबल है और बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। तो क्या है? ए डी ई एंड के आर फैट सोल्यूबल and B and C are water soluble. We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the processes like glycolysis and Krebs cycle. Vitamins like riboflavin, that is vitamin B2, and nicotinamide, that is vitamin B3, respectively, are necessary for their production. तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि फ्लाविन वाला जो है FADH2 और निटिन वाला जो है NADH2 जो है ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से बनते हैं। तो इसके थ्रू जो विटामिन है राइबोफ्लाविन और निकोटिनामाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है FADH2 और NADH2 के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि FADH2 और NADH2 का जो प्रोडक्शन है वो अगर नहीं होगा अगर ऐसे विटामिन जो कि राइबोफ्लाविन और निकोटिनामाइड अवेलेबल नहीं है। इसके लिए देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको बुखार खांसी सर्दी हो रही है, तो डॉक्टर्स आपको विटामिन खाने को बोलता है। क्यों विटामिन खाने को बोलता है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में राइबोफ्लाविन या निकोटिनामाइड कम है तो आपके ऑर्गन्स जो है वो क्रेब्स साइकिल और क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे और पूरी एनर्जी आपको नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको ये दोनों साइकिल होने के लिए विटामिन होना बहुत जरूरी है। देखिए, छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं खाते, चिड़चिड़ापन होता है, या फिर मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज को तकलीफ होती है, वीकनेस होता है, चक्कर आता है, या एजेड लोगों को चक्कर आता है, तो उनको विटामिन की गोली देते हैं। तो विटामिन की गोली देने का रीजन यही है कि ये विटामिन जो है ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी कंटिन्यूअसली क्रेब्स साइकिल प्रोसेस और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करते रहे, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती रहे। There is about 65 to 70% water in our body. Each cell contains 70% water weight by weight. तो हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर है और हर सेल के अंदर भी 70% वाटर वेट होता है। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। इवन ब्लड का जो प्लाज्मा यानी कि जो ब्लड का थिक पार्ट है उसमें भी 90% क्या होता है? वाटर ही होता है। Functioning of cells and thereby whole body disturbs even if there is little loss of water from the body. Hence, water is an essential nutrient. तो कोई भी सेल्स फंक्शन बराबर से नहीं कर पाएंगे अगर पानी बॉडी में कम हो जाए। इसके लिए देखिए, आपको बार बार प्यास लगती है, आप बिना खाने के 2, 3, 4, 5, 6 दिन भी रह लोगे, लेकिन बिना पानी के आप 2 दिन के ऊपर नहीं जी सकते, क्योंकि बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली पानी मांगता रहेगा। तो जैसे ही बॉडी में पानी की कमी होगी आपको चक्कर आएगा, आपको कमी महसूस होगी, आपको वीकनेस फील होगा, क्योंकि बॉडी में पानी कंटिन्यूअसली जरूरी है कई सारे फंक्शंस को होते रहने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको खुद से ढूंढ के, बिना किसी के हेल्प के, सिर्फ ऑनलाइन ढूंढ के आप ये सब मुझे लाके देंगे, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चंस को लिखेंगे और ये सारे आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे चाहिए, सॉरी पर्सनली मुझे मैसेज करके चाहिए मेरे नंबर पे, ठीक है? Now
Along with all the above nutrients, fibers are also essential nutrients. In fact, we cannot digest the fibers. However, they help in the digestion of other substance and digestion of undigested substance. We obtain the fibers from leafy vegetables, fruits, cereals, etc. तो ऊपर दिए हुए सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या कहते हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है, ये सब के साथ साथ हमें फाइबर भी लगता है. फाइबर देखिए, अगर आप लोग भाजी नहीं खाओगे या फिर फाइबरस फ्रूट जैसे कि कैबेज नहीं खाओगे तो आपको मोशन पास करने में डिफिकल्टी होती है. क्यों होती है? क्योंकि फाइबरस फूड हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो एज इट इज हमारी बॉडी से निकल जाता है. बट जब वो निकलता है तो आप उसके साथ साथ वो जो भी हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल फंसा हुआ है उसको लेके चला जाता है. इसकी वजह से हमारी बॉडी क्लीन होती है. यानी कि जब भी हमको इनडाइजेशन हो या हमें तकलीफ हो खाना पचाने में, तो हम फाइबरस फूड्स अगर ज्यादा खाएंगे जिसमें फाइबर ज्यादा होता है तो हमें आराम हो जाता है. क्योंकि फाइबर्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते, इसी वजह से वो हमारी बॉडी में नहीं रहते और वो हमारी बॉडी को क्लीन करने में, यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट करने में काफी हद तक मदद करते हैं. Now coming to cell division, an essential life process. सेल डिवीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को सबको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है बहुत छोटा सा होता है. आज वो छोटे से बच्चे से आप इतने बड़े हो गए हो. आपने भी आपके बचपन के छोटे छोटे फोटोज देखे होंगे. आपने कभी सोचा कि आप उधर से इतने बड़े कैसे हो गए? आपको पता है आप बड़े हो रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि कैसे हो पा रहा है? आपने कभी कोई छोटा पपी भी अगर घर में लाया हो या फिर कोई दूसरा पेट लाया हो, वो जब आता है घर में तो कितना छोटा सा रहता है और कुछ ही दिनों में कितना बड़ा हो जाता है. ये ऐसा क्यों होता है? ये होने का मेन रीजन है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन यानी सेल का बंटना. ये सेल डिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके वजह से ह्यूमन बींग्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं. तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी only a new organism is formed from existing one. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. तो सेल डिवीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी के वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, यानी कि जिसको हमारे जैसा ऑर्गेनिज्म जो कि छोटा पैदा हुआ था वो बड़ा होता है. और एक इमैसिएटेड बॉडी, इमैसिएटेड यानी ऐसी बॉडी जिसका कोई ऑर्गन नहीं अवेलेबल है या नहीं है वहां पर, वो रिस्टोर किया जा सकता है. तो ये सेल डिवीजन, देखो सेल आपको पता है इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑफ द ह्यूमन और बॉडी और फॉर एनी ऑर्गेनिज्म. ये जो सेल है, ये जो डिवाइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सेल बढ़ते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो कितने टाइप के सेल डिवीजन हैं? दो टाइप के हैं. एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस. Mitosis occurs in somatic cells and stem cells of the body, whereas meiosis occurs in germ cells. तो mitosis कहाँ होता है? सोमैटिक और स्टेम सेल्स में होता है. स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स क्या होता है आगे जाके हम देखेंगे. अभी के लिए आप लोग समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ डिपेंड करता है. और जर्म सेल्स क्या है? जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीजन we should know the structural organization of cell that we have studied earlier. Each cell has a nucleus. Besides, other cell organelles are also present. तो हर सेल में न्यूक्लियस होता है और दूसरे भी ऑर्गेनेल्स होते हैं. और सेल डिवीजन होने से पहले आपको किसी सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये सब समझना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि आपको जब तक ये नहीं समझेगा कि कौन से ऑर्गन्स एक सेल के अंदर हैं, तब तक आप सेल डिवीजन अच्छे से नहीं समझ पाओगे. Before any type of cell division, the cell doubles up its chromosome number present in its nucleus. That is, if chromosome number is 2n, it is doubled up to 4n. तो कोई भी सेल डिवीजन होने के पहले जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है. अगर वो 2n है तो वो 4n में आ जाता है. इसके बाद गाइस माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेस के चारों फेजेस हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स के साथ. ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं. लास्ट ईयर के साइंस 2 के प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस आए थे. और ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 2 ही पेज है. चाहिए तो मैं अभी खत्म कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि माइटोसिस मियोसिस को धीरे धीरे समझना ज्यादा बेटर होगा. आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कुछ भी डाउट है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप